साडा कोई सिर ते साया नहीं है। मैं बेवा औरत है, मेरे बच्चे नहीं कहने तीन बच्चा छोटा, मेरी कोई अर्ज नहीं सुनता है। मैं किसी को तली करदे नहीं मंगिया, मैं अंदर वाड़ते मेहनत करदे अपने बच्चे पाल ले, मकान गिरवी दे दे, कर्जे चुकदे अपना काम करदी रही। मैं किसी को तली करदे नहीं लिया है। इंसाफ ना मिलिया तो मैं अपने बच्चे भी ते आ भी मैं अग ला दे। अस्सलामुअलैकुम, आमिर राना ऑफिशियल से मैं हूं आमिर बशीर। आज की कहानी है एक बेवा खातून की, जिसके खावंद का साया सर से उठने के बाद उसके अपने उनकी जायदाद के पीछे पड़ गए। थाना फिरोजवाला में 24/16/22 एक मुकदमा दर्ज होता है, जिसका मतन ये है कि खातून के ऊपर उसी के रिश्तेदार हमलावर होते हैं, उसके सर में आहनी राड़ मारने की कोशिश करते हैं और उसके साथ उनकी बेटी जो मेरे साथ अभी मौजूद है वो अपना हाथ आगे करती है और उसके बाएं हाथ की एक उंगली डैमेज हो जाती है, बल्कि जो हड्डी है वो ब्रेक हो जाती है, जिसका MLC THQ फिरोजवाला में करवाया जाता है और इनकी मदय्यत में FIR दर्ज हो जाती है। मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन मुल्ज़मान गिरफ्तार होने के बाद उनसे मुल्ज़मानों की तरह क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है पुलिस की तरफ से या नहीं। लेकिन उससे पहले जो मदय्या खातून है और वो उसकी बच्ची जिसकी हाथ पूरा डैमेज है, जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया है, वो अपने ही रिश्तेदारों का, क्योंकि उनके सर के ऊपर उनके बाप का साया नहीं है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं। आखिर जुल्म की एक इंतहा होती है। इस माँ के निकलते हुए आंसू भी आप देख रहे होंगे कि क्यों लोग अपने ही रिश्तेदार इनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। ये जायदाद तो यहीं पे रह जानी है। आखिर मारने वाले इनके रिश्तेदार हैं और लगते क्या हैं, सब कुछ जानते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, रोवो ना तुसी, मैं दसो दुनिया ਤੁਹਾਨੂੰ देखण ढई है मसला की है, कौन लोग ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਹੈ, ਸਾනුੱਲਾ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਇਹ 10 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਟ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਕਾ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਜ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਫੋਤ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਲੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲੈ, ਮਕਾਨ ਗਿਰਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵਕੂਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੋਇਆ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ, ਘਰ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋ ਫੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਪਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਰਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਛਿਲਾ ਪਾਣ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ 30-34 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਅੰਗੂਠੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈ। ਅੰਮੀ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੁੱਕੀ, ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। 34,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਫੜਿਆ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਏਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੇਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। माँ जी परेशान ना तुसी हो। मेरी बहन मुझे ये बताओ कि ये हाथ पे क्या हुआ? ये मुझे सानुल्लाह ने रॉट मारा। मेरी वालदा को मारने लगा था दिमाग पे, मैंने आगे हैंड किया तो मेरे हैंड पे लग गया।
वकूवा हुआ कैसे है? आप किस जगह पे थे? आपके घर में सारा कुछ हुआ है या घर से बाहर? नहीं, ये घर से बाहर हुआ है। ये हमारे साथ पहले उनका जो झगड़ा हुआ है ना, उसी वजह से हम ये हॉस्पिटल में गए हैं मेडिकल करवाने के लिए। अपनी वालदा के साथ मेडिसिन लेने गई उधर। जब हम रास्ते में आ रहे थे, ये लोग पहले मौजूद थे उस जगह पे। इन लोगों ने हमें रोका है, वहाँ पे रोक के ये जो सानुल्ला है, ये दानिश है और ये जो फैज़ रसूल है, इसने मेरी वालदा को इसने ललकार के इनको बोला है कि इनको नतीजा दो इस चीज़ का। ये इन्होंने जो कल एप्लीकेशन दी है उधर, तो जो दानिश है उसने मेरी अम्मी की वो गले पड़ गया। मेरी अम्मी की उधर तबीयत ख़राब हो गई है, ये बेहोश हो गई हैं। और सानुल्ला ने पीछे से राड मारने की कोशिश किया और मैंने पूरी हाथ आगे कर लिया, वो राड मेरे हाथ पे लग गया। इस बेवा खातून की ये हमारी माँ बजा है। इनके साथ एक बार नहीं, इनके साथ 2 बार ये वकूआ हुआ है। पहले इनको मारा जाता है, इनके गिरेबान को चाक कर दिया जाता है बड़े बाजार के अंदर। ये बरहना हालत में बेहोश हो जाती हैं। इनके जो फैमिली मेंबरान हैं, इसकी जो बेटी जो इनके पास आई हुई है, वो और मोहल्लेदार मिलके इन्हें THQ फिरोज वाला में पहुंचाते हैं। वहां से ट्रीटमेंट के बाद ये एक एप्लीकेशन थाना फिरोज वाला में जमा करवाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, इनके साथ FIR के लिए जब प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो मुल्जमान पार्टी जो इन्हीं की जायदाद को हड़पना चाहती है और अभी वो गिरफ्तार भी हैं थाना फिरोज वाला में, वो इनके ऊपर हमलावर होते हैं अगेन दोबारा से, जब ये THQ फिरोज वाला में अपना MLC करवाने के लिए आते हैं। क्योंकि इस माँ का गिरेबान चाक किया होता है और वो उस वक्त नीम बरहना हालत में होती हैं, तो उस दौरान वो उनके ऊपर हमलावर होते हैं। और ये बेटी जो इनके पास आई हुई थी रहने के लिए, तो वो अपनी माँ को बचाने के लिए जब अपना बायां हाथ आगे करती है तो उसकी बाएं हाथ की उंगली टूट जाती है, जो कि अभी आप ये सारा देख भी रहे हैं। ये किस तरह सारा प्लस्तर किया हुआ है। इनकी मदय्यत में FIR तो दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस का जो रोल है वो बड़ा ही सवालिया निशान है यहाँ पे। ऑफ द रिकॉर्ड जब हमारी SHO थाना फिरोज वाला से बात हुई तो वो कहते हैं हमें कि क्या ये साहिब जो तीनों मुल्जमान पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, ये आपको लगते हैं किसी एंगल से मुल्जम? ये मासूम शख्स जिसकी चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी है, ये लगता है आपको मुल्जम? लेकिन उन्हें यह नज़र नहीं आ रहा, इस माँ के ज़ारो कतार निकलते हुए आंसू जो निकल रहे हैं आंखों से, क्या उन्हें वो ये नज़र नहीं आ रहे? इस बहन की टूटी हुई उंगलियां, जिससे बरहना हालत में इस माँ को जब वो लेकर जा रही थी हॉस्पिटल में, उसके सर के ऊपर राड मारना चाहा था ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मार देते तो सारी जायदाद को हड़प कर लेते। क्योंकि इनके सर के ऊपर इनके खामद का साया नहीं है, इन बहनों के सरों के ऊपर इनके वालिद का इनके सरों के ऊपर साया नहीं है। मेरी बहन मुझे ये भी बताएं, जब आपके बाजू के ऊपर उन्होंने राड मारा, आपका ये हड्डी टूट गई, आपको बचाने के लिए कौन आया? आपने तो अपनी माँ का सहारा बन गए, इन्हें अस्पताल में ले गए, आपको बचाने के लिए उस वक्त कौन आया था? मेरे भाई और मेरी सिस्टर थी साथ, मेरे बहनोई, वो दोनों हमारे साथ ही थे। वो लोग इन पीछे आ रहे थे मेडिसिन लेकर, उन्होंने हमें आकर बचाया इनसे। पुलिस तो कह रही है कि ये वकूवा हुआ ही नहीं है। आप किस तरह अपनी बेगुनाही को, आप किस तरह इंसाफ के लिए कटहरे में लाकर अपने आप को पेश करेंगे? देखें जी, हम मजलूम हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई है, कैसे हमें इंसाफ मिलेगा? आपको लगता है इंसाफ मिल पाएगा? नहीं सर, हमें नहीं लगता। कैसे इंसाफ लेंगे? आपकी टूटी हुई हड्डी तो किसी को नजर नहीं आ रही, पुलिस वालों को? जी ऐसे ही है, उनको नहीं नजर आ रहा ये सब कुछ। थाने में गए आप? जी हम गए हैं उधर। मुलाकात हुई आपकी तफ्तीशी अफसर से, SHO? हाँ जी, SHO से नहीं हुई, वो हुई है ASIC हुई है। तो फिर वो क्या कहते हैं आप? बस वो यही हमें कह देते हैं कि आपका ये जो मुजरिम उन्होंने पकड़े हुए हैं वो हमारे सामने लेकर आते हैं उनको। 1-2 दिन पहले उनका वो उधर सारा हुआ, कट हुआ है, फैसला हुआ है उधर। उन्होंने ये कहा कि हम अब ये पेश करेंगे उधर, तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या बनता है। इसके अलावा उन्होंने हमारे साथ कोई बात, उन्होंने यही पूछा कि ये वाकई आपका ये सच है जो आपने किया, हकीकत आपके साथ ये काम हुआ है? तो वाकई हमारे साथ ये हकीकत हुआ है। अब मुझे बताएं, मैं अपने व्यूवर से और देखने वालों सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, क्या कोई बहन, आपकी कोई बहन हो, आपकी बहन पुलिस कहती है कि ये वकूवा हुआ ही नहीं है, अगर ये वकूवा हुआ नहीं है तो इस बहन की जो हड्डी टूट गई है, क्या आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, क्या वो इस तकलीफ़ से गुजरना चाहेगी? उसे नज़र आ रहा हो कि मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी और मेरी हड्डी भी शायद वो जुड़ ना सके हो, तो फिर पुलिस वालों को क्यों नज़र नहीं आता? क्या ये पुलिस वाले जो रखवाले हैं हमारे माशरे में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के, ये इन माओं को, इस बहन को
और उस मासूम बच्चे को जिसकी उम्र 11 साल है, जिसके सामने उसकी बहन को तशद्दुद किया गया, जिसकी माँ को नीम बरहना किया गया, उनको इंसाफ फराहम कर पाएंगे? माँ जी मुझे ये भी बताएं कि इस 2 मरतबा आपके ऊपर वो हमलावर हुए हैं। जब पहली बार हमलावर हुए उस दौरान पुलिस को आपने एप्लीकेशन दे दी, दूसरी बार हमलावर हुए तो आपकी बेटी की उंगली टूट गई। अभी आपको क्या लगता है, आपको अगर इंसाफ यहाँ से ना मिला तो आप क्या करेंगे? मैं कहनी मेरा इंसाफ होना चाहिए है। मैनू इंसाफ ना मिलिया तो मैं अपने बच्चे भी ते आ भी मैं अग ला दे सड़ते मर जाते, इन्हों के सिरे चढ़ते। मैनू इंसाफ चाहिए है, इंसाफ नहीं दे रहे मुझे। ये माँ की दर्द भरी दास्तां और इस बहन के ज़ारों कतार निकलते हुए आंसू इस माँ के साथ चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं? पुलिस तो कहती है ये झूठ बोल रहे हैं। क्या पुलिस के पास कौन सा पैमाना है कि वो जाए वकूआ पर जाए बगैर लोगों की बातें सुन के, मुल्ज़मान की बातें सुन के वो ये तय कर ले कि इनके साथ ज्यादती हो रही है? किनके साथ? मुल्ज़मान के साथ। और ये जो रात की तरीकी में ये माँ और ये बहन इंसाफ के लिए दरबदर ठोकरें खा रहे हैं कि कानून के अदारों को ये क्यों नज़र नहीं आ रहा। मुझे पूरा उम्मीद है कि इन माँ को और इस बहन के जो निकलते हुए आंसू हैं उनके लिए इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे और हर उस दरवाजे को खटखटाएंगे ताकि इनको इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।